तो लास्ट क्लास हम लोग लिंक लिस्ट डिस्कस कर रहे थे. I think that you just go through that particular topic, linked list. Yes, sir. So we just discuss the structure as well as various list of the operation related to the पूरा कर लो, एक बार देख लेंगे, सबमिट नहीं करना. Now, first of all, we discuss today. We discuss the various operation of the linked list. तो सबसे पहले, first of all, we create an empty linked list. So for creation of an empty linked list, initially आपका क्या है? Initially your list is empty. So whenever any list is empty, that means whatever pointer you are taking for initiation of that list, that must be assigned by null. So in case of a stack, whenever we are going to implement a stack using linked list, then we just take additional pointer top, because the top end is responsible for insertion and deletion operation over there. So top pointer हम लोग use कर रहे थे. So top must be assigned by null pointer whenever the stack is empty. In case of queue, whenever your queue is empty, the front and rear pointer of that queue must be assigned by null. So in this case also, whenever the single linked list or one-way list is empty, that means no node is allocated over there. At that moment, whatever additional pointer we are taking for initiation of the particular list, that is head pointer in case of single linked list and head and tail in case of doubly linked list. So head pointer or start pointer, whatever pointer you are taking for that, that must be assigned by null at the time of creation of an empty linked list. तो create करने के लिए first of all हम लोग को ये देखना होगा कि list जो है, so we just discuss the function. So we have a function void. Suppose for creation of an empty linked list, because so earlier we declare n, and we just define type def struct node by n. N को हम लोग define किए थे. So we just have a pointer of n type. Now initially, whenever your head consists no, we just take double pointer here. Void create list pointer to pointer head, and we assigned head any value at head to null. Either you write a value at head equal to null, or you can just write n asterisk null also. Both manner you can write. So at the creation, at the time of creation of the empty linked list, your head pointer must be assigned by null. So whenever we are in the process to design a linked list, single linked list, so first of all we call this function for creation. If you are not using this function, then initially you declare null pointer to the head pointer variable. तो null value आप head pointer variable में जैसे आप top में और front और rear में assign किए थे, वैसे ही assign करेंगे. तो in place of this function you can use that assignment also.
तो क्रिएशन फंक्शन के अंदर केवल उसी पर्टिकुलर सेक्शन को एड अप कर देना है, यानी कि एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ लिस्ट योर हेड पॉइंटर इज असाइंड बाय नल। अब यहाँ पर पॉइंटर टू पॉइंटर हेड समझ में आ रहा होगा आपको, यू ऑलरेडी यूज पॉइंटर टू पॉइंटर। व्हाई वी आर यूजिंग पॉइंटर टू पॉइंटर? एनीवन? Sir, to check value stored at the address which the head contains, sir. Obviously, so because whenever we are using pointer to pointer, that means it contains the address of any other pointer variable. Okay. Whenever we are using single pointer, that means that pointer is containing the address of any data variable. So whenever we want to assign the address of any pointer variable, then we need a pointer to pointer of variable, that is asterisk asterisk. Double pointer is used for pointer to pointer. If you are using single pointer, then that pointer is responsible for assigning the address of any data variable, because head is the pointer variable. So for that reason we are assigning null to the pointer variable. तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मल पैरामीटर है वो हम पॉइंटर टू पॉइंटर ले रहे हैं। नाउ टू सेकेंड वन इज टू ट्रैवर्स द लिस्ट। तो क्रिएशन करने के बाद व्हेनेवर वी आर इन द प्रोसेस टू ट्रैवर्स द लिस्ट, यानी ट्रैवर्सल ऑपरेशन, बेसिकली वी कैन परफॉर्म ट्रैवर्सल इन फॉरवर्ड मैनर इन सिंगल लिंक लिस्ट। देयर इज एन ऑप्शन टू ट्रैवर्स इन बैकवर्ड मैनर आल्सो, बट फॉर बैकवर्ड मैनर वी हैव टू रीच द लास्ट पोजीशन। पहले लास्ट पोजीशन पर जाना होगा, फिर वहां से हमको बैक होना होगा। तो उसके लिए क्या है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए तो नेक्स्ट पॉइंटर आप ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हर बार नेक्स्ट करते जाएंगे। कब तक नेक्स्ट करेंगे? जब तक कि आपका जो आपका हेड या नल ना असाइन हो जाए। नल नहीं असाइन हो जाए। नल का मतलब है कि यू रीच द पर्टिकुलर एंड ऑफ द नोड, यानी कि लास्ट नोड पर आप पहुंच गए, बिकॉज लास्ट नोड का ही नेक्स्ट पॉइंटर आपका नल होता है। ये चीज हम लोग यहाँ मेंशन किए थे कि नहीं पॉइंट में, सिंगल लिंक लिस्ट जब डिस्कस कर रहे थे, डिस्कस किए थे कि द नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड ऑफ द लास्ट नोड मस्ट बी असाइन्ड बाय नल वैल्यू। दैट मींस कि व्हेनेवर यू रीच द लास्ट नोड, देन द नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड ऑफ द लास्ट नोड इज नल। तो दैट इज द प्रोसेस टर्मिनेशन ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसेस। वहां पर आपका प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा, ट्रैवर्सल स्टॉप हो जाएगा। तो फर्स्ट वी डिस्कस द ट्रैवर्सल ऑपरेशन on single linked list. अब इसमें आप लैंग्वेज जोड़ सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ एम्प्टी लिंक लिस्ट, ठीक है ना, हेड पॉइंटर इज असाइन्ड बाय नल बिकॉज नो नोड इज अवेलेबल ओवर देयर एंड हेड पॉइंटर इज रिस्पांसिबल फॉर assigning the address of first node. So if there is no node, then head contains the null value. ठीक है। तो ट्रैवर्सल ऑपरेशन अगर सिंगल लिंक लिस्ट में करेंगे तो सबसे पहले लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक वेदर द लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट। ऐसा तो चेक करना होगा ना, अगर जब लिस्ट आपका और नहीं भी अगर चेक करेंगे तब भी होगा, नहीं चेक करेंगे तो क्या होगा? आपका अगर हेड में नल नहीं है तो उस केस में आपका ट्रैवर्सल नहीं होगा, होगा हाँ। अगर हेड में नल है तो आपका ट्रैवर्सल नहीं होगा, क्योंकि आपके लिस्ट में कोई वैल्यू अवेलेबल है ही नहीं। तो हाँ बोलिए। हेलो सर। सर इम्प्लीकेशन ऑफ एम्प्टी लिंक लिस्ट में सर यहाँ सर फंक्शन में सर डबल स्टार दिया है सर, पॉइंटर ऑफ पॉइंटर यहाँ मतलब क्यों लगा है? हाँ, पॉइंटर ऑफ पॉइंटर इसलिए लगा है कि बिकॉज वी आर गेटिंग एड्रेस ऑफ एनी पॉइंटर वेरिएबल। यहाँ पर जब आप हेड में हेड का चेंज होगा, तो हेड जब चेंज होगा तो पहली बार हेड का एड्रेस जब डालेंगे तो हेड इज व्हाट? हेड इज पॉइंटर वेरिएबल। तो यू आर गिविंग द एड्रेस ऑफ एनी पॉइंटर वेरिएबल टू द पॉइंटर वेरिएबल। दैट्स व्हाई पॉइंटर टू पॉइंटर। व्हेनेवर यू आर यूजिंग पॉइंटर टू पॉइंटर, पॉइंटर टू पॉइंटर तब लेते हैं जब आप किसी पॉइंटर का एड्रेस किसी दूसरे पॉइंटर में असाइन करते हैं। जैसे अगर हम कोई वेरिएबल ले रहे हैं, सपोज हम वेरिएबल लिए इंट a इक्वल टू 10 और इसके लिए एक पॉइंटर लिए एस्ट्रिक्स p, तो p इक्वल टू एड्रेस ऑफ a,
और सपोज इफ यू वांट टू कीप द एड्रेस ऑफ दिस पी, पी का एड्रेस अगर आपको रखना होगा तो क्या लेंगे, एस्ट्रिक्स एस्ट्रिक्स क्यू लेंगे, एंड you just assign the address of p. Yes. That means what, you have a pointer, you have a variable a, you have a pointer p, and you have a pointer q, any pointer to pointer q. Here you are assigning the value 10, the address is 1000, p contains the address of this one, and there is some own address, p का भी अपना address 2000 होगा, and q is the container of 2000, yani q is the pointer which contains the address of another pointer variable. So whenever we introduce pointer to pointer, that means it contains the address of any other pointer variable. Is it clear? सर यहाँ पे इंट में डबल स्टार पे दिया सर। हाँ हाँ बोलिए। तो सर यहाँ पे इंट में सर डबल स्टार पे दिया सर, मिटाइए। हाँ बोलो बोलो ना, हम उसको हटा रहे हैं क्योंकि यहाँ फंक्शन लिखना है इसलिए। हाँ बोलो, इंट में डबल स्टार क्यों लिए? हाँ यहाँ क्यों लिए थे सर? हाँ क्यों लिए? नहीं नहीं नहीं, ये आपका Q था, ये आपका P था, और ये आपका A था। A में वैल्यू 10 था और ये किसी एड्रेस पर होगा, और जब आप A का एड्रेस P में असाइन कर रहे हैं तो P में 1000 एड्रेस होगा, P का भी अपना एड्रेस होगा कुछ, और Q जो है वो P के एड्रेस को होल्ड कर रहा है, इसका अपना भी कुछ एड्रेस होगा। तो यहाँ Q is used to assign the address of P, Q equal to P लिख रहे हैं, P is the pointer variable, तो P का एड्रेस Q में असाइन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये Q था आपका, Q, A, P नहीं था। Now to perform traversal operation on single linked list, we have to mention void suppose traverse। हम लोग दो फंक्शन डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग पहले ट्रैवर्सल डिस्कस करेंगे, बाद में जो है रिवर्स ट्रैवर्सल भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी डिस्कस ऑल द ऑपरेशन एंड देन एडिशनल अगर कोई फंक्शन होगा तो उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर ट्रैवर्स हम कर रहे हैं, जनरल ट्रैवर्स 1, दो ट्रैवर्सल डिस्कस करेंगे। तो वी हैव अ पर्टिकुलर ट्रैवर्स हम तभी करेंगे जब आपका लिस्ट एग्जिस्ट है। हाँ बोलिए सर, या पैरामीटर सप्लाई करना कंपलसरी है सर इसके सारे फंक्शंस नो में? नो, फिर वही क्वेश्चन, इसके लिए हम लोग पहले शुरू में ही बता दिए थे कि फंक्शन में पैरामीटर ले भी सकते हैं, नहीं लेंगे तो इंटरनली आपको फंक्शन के अंदर वो सारा करना होगा या ग्लोबली करना पड़ेगा। यस सर, ठीक है ना। तो yes, ये yes, कोई कंपलसरी नहीं है, हम अभी ऐसा बता रहे हैं। इसके अलावा इसको हटा के दूसरा तरह से भी बता देंगे, दोनों तरह से बता देंगे, विदाउट फंक्शन भी विदाउट आपका पैरामीटर भी बता देंगे। विदाउट पैरामीटर में आइदर यू ग्लोबली डिक्लेयर द वेरिएबल और यू कैन टेक इट इन लोकल मैनर, आप लोकलाइज कर लीजिएगा उसको, पैरामीटर कॉल नहीं करिएगा, वहां पर ही इनिशियलाइज कर लीजिएगा, और ग्लोबल कर लीजिएगा तो ग्लोबल से आपका वो वैल्यू एक्सेसिबल होगा। तो अब यहाँ पर क्या ट्रैवर्स करने के लिए क्या चेक करना है आपको? जैसे सपोज करो कि ये आपका लिस्ट है, इसमें हमको ट्रैवर्स करना है 2, 5, 10, 12 तक जाना है, यानी लिस्ट को डिस्प्ले कराना है 2, 5, 10, 12। तो सबसे पहले तो ये फर्स्ट नोड का एड्रेस आपका कहाँ पर होगा? हेड में होगा। हेड में। तो फर्स्ट नोड का एड्रेस हेड में होगा, हेड में नल नहीं होगा। इसका मतलब अगर इस लिस्ट का एग्जांपल लें तो इस केस में हेड डज नॉट असाइंड बाय द पर्टिकुलर नल बिकॉज इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। तो हाउ वी कैन गेट द फर्स्ट एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड? इस पर्टिकुलर फर्स्ट नोड पर जो वैल्यू है इसको कैसे निकाल पाएंगे? हेड का, सर हेड के नेक्स्ट को प्रिंट करा के, हेड के नेक्स्ट को या हेड के इन्फो को? ओ सॉरी, इन्फो। यस सर, हेड के नेक्स्ट को करिएगा तब तो आप 5 में चले जाइएगा, सीधे 2 को स्किप कर दीजिएगा। यानी कि यहाँ पर दो काम करना होगा, इन्फो से वैल्यू रिट्रीव करना होगा, नेक्स्ट से हेड के एड्रेस को चेंज करके आगे बढ़ना होगा। ठीक है ना। तो हेड का इन्फो ये कब तक करेंगे? जब तक कि हेड में आपका नल असाइन नहीं हो। हेड में नल कब असाइन होगा? जब आप लास्ट नोड का वैल्यू को रिट्रीव करके और हेड के एड्रेस को चेंज करके आगे बढ़ाएंगे। तो हेड का एड्रेस में आप हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट करेंगे तो हेड के नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? नल आ जाएगा। तो जैसे ही नल आएगा तो आपका प्रोसेस, हाँ। तो व्हाट इज द कंडीशन यू हैव टू चेक हियर? तो व्हाइल हेड नॉट इक्वल टू नल, जब तक कि हेड नॉट इक्वल टू नल है तब तक आपको उसके वैल्यू को प्रिंट कराते जाना है। यानी कि
हेड के इन्फो को प्रिंट कराना है। तो हेड के इन्फो को यानी फर्स्ट टाइम 2 प्रिंट हुआ, इसके बाद यू हैव टू चेक आउट द हेड। हेड को चेक कैसे कराएंगे? हेड का हेड में नेक्स्ट असाइन कर देंगे। हाँ, हेड का नेक्स्ट इसमें असाइन करेंगे। ये हेड का नेक्स्ट असाइन होते हुए तब तक असाइन करके आप हेड इन्फो प्रिंट करेंगे जब तक कि हेड नॉट इक्वल टू नल होगा। जैसे ही आप लास्ट नोड के बाद हेड नेक्स्ट करेंगे, यानी लास्ट नोड को प्रिंट करके हेड नेक्स्ट करेंगे, तो नल असाइन होगा हेड में। उसके बाद कंडीशन डिस्क्वालीफाई करेगा, आप इस लूप से बाहर निकलेंगे। तो दैट इज द सिंपल वे टू ट्रैवर्स इन द सिंगल लिंक लिस्ट इन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन। आप फॉरवर्ड सर यहाँ पे अंडर फ्लो कंडीशन के लिए चेक नहीं करेंगे जब अगर मेरा हेड में नल होगा इनिशियली? हाँ, वो आप एक अभी तो बताया कि आप वो कंडीशन चेक कर लीजिएगा ऊपर में। हम यहाँ पे केवल Yes, sir, ट्रैवर्सल को बता रहे हैं। अगर Yes, आपका sir, yes. हाँ हेड में नॉट इक्वल टू नल होगा जब तक, तभी। अगर हेड में नॉट इक्वल टू नल नहीं होगा तो वहां ऊपर में एक कंडीशन डाल दीजिएगा आप, ठीक है ना, कि इफ हेड इज इक्वल टू नल देन नो ट्रैवर्सल शुड टेक प्लेस, ठीक है ना। तो वो एक कंडीशन आप वहां पर एडअप कर सकते हैं। तो ये कंडीशन केवल है ट्रैवर्स करने के लिए। अगर आपका है तो उसमें एडिशन करेंगे तो यहाँ क्या एड होगा? यहाँ पर एक केवल एम्प्टी को चेक कर लेंगे। तो इफ हेड इज इक्वल टू नल देन नो ट्रैवर्सल शुड टेक प्लेस, वो 2 लाइन का कोड आप इसमें ऐड कर लेंगे। देन थर्ड वन इज searching an element searching an element within the list from the list। तो अब सर्चिंग आप ऑलरेडी लीनियर बाइनरी सब तरह का सर्चिंग आपको पता है। यहाँ पर अगर सिक्वेंशियल सर्चिंग करेंगे, तो आप 2 तरह से सर्चिंग होगा। या तो आप सॉर्टेड लिस्ट में सर्चिंग करेंगे या अनसॉर्टेड लिस्ट में। तो सॉर्टेड लिस्ट में सर्चिंग करने के लिए बेसिकली आपका जो लीनियर सर्चिंग है या सिक्वेंशियल सर्चिंग है, इसमें ऐसा कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है कि आपका लिस्ट सॉर्टेड होना चाहिए। But whenever you are doing the binary searching, then your list must be in sorted manner whenever you are going to perform sorting operation। But यहाँ पर हाँ, यहाँ पर सर्चिंग करने के लिए क्या कंडीशन होगा? ऑटोमेटिकली आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि सर्चिंग करने के लिए हमको जो आइटम टू बी सर्च करना है उसको हर नोड के इन्फो से चेकआउट करना होगा। अगर नोड के इन्फो से कंपेयर करने में वो आइटम मिल जाता है तो हमारा वो पर्टिकुलर लोकेशन या वो पर्टिकुलर एड्रेस हमारा रिटर्न हो जाएगा और उसको हम मेन में चेक कर लेंगे। अगर हमारा कोई एड्रेस रिटर्न होगा तो उस केस में आपका सर्चिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। अगर एड्रेस रिटर्न नहीं होगा इसका मतलब है कि सर्च आपका सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुआ। तो जस्ट ट्राई टू राइट द सर्च फंक्शन। एक बार लिखिए, खुद से लिखने की कोशिश करिए। तो हाउ यू फाइंड आउट द सर्च? सिंपल, अनसॉर्टेड लिस्ट में कोई सॉर्टिंग नहीं है। अनसॉर्टेड लिस्ट को अगर सर्च करना हो तो इसमें पैरामीटर क्या क्या होगा? एक तो आपका हेड होगा और दूसरा आइटम होगा जो आपको सर्च करना है अगर पैरामीटर लेंगे तो एक आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एक आपका आइटम जिसको सर्च करना है। नाउ व्हाट इज द कंडीशन? यू हैव टू चेक आउट द कंडीशन वेदर the item is available with the list or not. If it is available then search is okay, otherwise search is not okay। तो try to write this function। इसको लिखने का कोशिश कीजिए तो एक बार, and then I discuss this one। यहाँ पर किसी तरह का लीनियर बाइनरी सर्चिंग आपको नहीं अप्लाई करना है जो एरे के साथ आप करते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको मूवमेंट ऑफ नोड करना है, क्योंकि हर नोड को मूव कराकर आपको कंपेयर करना है वो आइटम जिसको सर्च कर रहे हैं। चेक करेंगे आप तक ट्राई करिए टू परफॉर्म सर्च ऑपरेशन in single linked list। We traverse the
list from beginning and compare each element of the list with the given element for search. जो भी एलिमेंट दिया हुआ है सर्च करने के लिए, for search या to given element to be searched, and if the match occurs, the location of the element is returned. अगर मैच होगा तो लोकेशन रिटर्न हो जाएगा जिस पर्टिकुलर लोकेशन पर वो आइटम है। अगर नहीं मैच होगा तो आपका जो है सक्सेसफुली वो आइटम अवेलेबल नहीं है। तो इफ we reach the end of the list and no match found, then null value is returned. Null value is returned to indicate the element is not available with the list, available in the list। यानी कि आप दो चीज यहाँ चेक करना है। अगर आपका एड्रेस मिल गया, यानी कि अगर कंपेयर करने पर एड्रेस मिल गया तो उस एड्रेस को लौटाना है। अगर एड्रेस नहीं मिला तो फाइनली एट द एंड after the loop you just return null, because that null is the value showing that the item is not available in the list. Now by the help of this steps you just write the function। null कब होगा? आप अगर पर्टिकुलर पॉइंटर को अगर रिटर्न करेंगे, अगर लिस्ट में एलिमेंट नहीं होगा तो चूंकि आप सर्च करते करते कहां जा रहे हैं, एंड ऑफ द लिस्ट जा रहे हैं ना। आप जो कंपेयर करने के लिए सर्च कर रहे हैं तो आप हर बार क्या कर रहे हैं, पॉइंटर को नेक्स्ट नोड में मूव करा रहे हैं। नेक्स्ट नोड में मूव कराने के लिए आप नेक्स्ट पॉइंटर यूज कर रहे हैं हर नोड का। तो ये नेक्स्ट पॉइंटर जो हर नोड का यूज कर रहा है, जब लास्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर यूज करिएगा तो आपका उस पॉइंटर में क्या असाइन होगा, नल असाइन हो जाएगा ना। इसका मतलब है कि एंड ऑफ द लिस्ट के बाद भी आपको वो आइटम नहीं मिला, इसका मतलब है कि लिस्ट में वो आइटम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सर हाँ, प्लीज चेक योर व्हाट्सएप सर, आई हैव सेंट ऑन योर व्हाट्सएप। Actually there were two images, so just look the second one sir. enter the item while head not equal to null. Yes, you can write in this manner also. So if head info equal to s, printf found, else head equal to head next. If head equal to हाँ ठीक है। बट दिस फंक्शन, अब ये फंक्शन जो है, हाँ ठीक है, ये सही है, ठीक है। तो अगर पैरामीटर लेकर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? वही चीज को पैरामीटर में डाल दीजिए सर। तो पैरामीटर में लेंगे सर तो मेन से इसको सर कराना पड़ेगा सर। यहाँ पे दो, एक हम लोग पॉइंटर वेरिएबल ले लेंगे और एक तो सर आइटम के लिए वेरिएबल ले लेंगे जो इनपुट करेंगे सर। हाँ ठीक है, ठीक है, एकदम सही है। तो यहाँ पर आपका वो नोड पॉइंटर ही अगर होगा, ठीक है, तो सर्च, अगर हम सर्च फंक्शन लिख रहे हैं पॉइंटर टू सर्च, अब ये सर्च आपका पॉइंटर है, सर्च के अंदर सर्च फंक्शन कॉल होगा।
यानी पॉइंटर टू पर्टिकुलर सर्च फंक्शन है, पॉइंटर टू फंक्शन यहाँ यूज करेंगे। तो n एस्ट्रिक सर्च, क्योंकि ये सर्च फंक्शन हम लोग मल्टीपल टाइम्स यूज करेंगे, सॉर्टिंग में भी यूज करेंगे, सर्चिंग में भी यूज करेंगे। सॉर्टिंग के लिए भी हमको आइटम को सर्च करके उसको एक ऑर्डर में प्लेस आउट करना होगा। तो यहाँ पर आपका दो पैरामीटर हम लोग यूज करेंगे। एक आपका जो है वो हेड यानी इनिशिएटर ऑफ द लिस्ट, और दूसरा आपका जो है वो आइटम जिसको सर्च करना है। अब इसमें सिंपली हमको आइटम को सर्च करना है, तो आइटम सर्च करने के लिए क्या करेंगे, हर बार हम हेड के इन्फो को चेक करेंगे। तो जब तक हमारा जो है हेड का इन्फो नॉट इक्वल टू आइटम हो या हेड नॉट इक्वल टू नल हो, ये दो कंडीशन है। हेड नॉट इक्वल टू नल हो, हेड नॉट इक्वल टू नल होगा, इसका मतलब है कि हेड कंटेन्स द एड्रेस ऑफ एनी नोड, एंड एट द सेम टाइम हेड का इन्फो नॉट इक्वल टू आइटम होगा। तब तक हमको हर बार क्या करना है, हेड के एड्रेस को चेंज करना है, हेड के एड्रेस को चेंज करना है। हेड के एड्रेस को चेंज करने के दौरान जैसे ही हमको इस दोनों में से कोई एक कंडीशन डिस्क्वालीफाई होगा, तो आपका पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो रिटर्न हो जाएगा। तो व्हाइल हेड नॉट इक्वल टू नल एंड हेड का इन्फो नॉट इक्वल टू आइटम, दो कंडीशन एक साथ ले रहे हैं। तो व्हाइल हेड नॉट इक्वल टू नल, ये कब होगा, जब हेड में कोई ना कोई एड्रेस होगा। हेड का इन्फो नॉट इक्वल टू आइटम, ये कब होगा, जब आपका आइटम से वो मैच नहीं करेगा। तो अगर ये दोनों कंडीशन है तो उस केस में हम लोग हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट करेंगे, यानी आगे बढ़ते जाएंगे, हेड को बढ़ाते जाएंगे, आगे हेड को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते बढ़ाते हो सकता है इस दोनों में से कोई एक कंडीशन पहले आ जाए, या दोनों एक साथ, दोनों भी हो सकता है। तो हेड को बढ़ाते बढ़ाते हम एंड ऑफ द लिस्ट चले गए, तो हेड एंड ऑफ द लिस्ट चले गए, आपको आइटम नहीं मिला, तब उस केस में क्या है, हेड नॉट इक्वल टू नल डिस्क्वालीफाई हो गया, ये डिससेटिस्फाई हुआ तो लूप आपका टर्मिनेट हो गया। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि हेड नॉट इक्वल टू नल तो अभी है, लेकिन हेड का इन्फो नॉट इक्वल टू आइटम नहीं हुआ, कहीं बीच में आइटम मिल गया, तो वो भी आपका टर्मिनेशन पॉइंट होगा। जैसे ही आपका हेड का इन्फो आइटम से मैच कर जाएगा, तो भी ये आपका व्हाइल लूप टर्मिनेट कर जाएगा। तो दोनों ही केस में, दोनों में से कोई, इसलिए लॉजिकल एंड है। तो हेड इक्वल टू हेड, हाँ सर ये फंक्शन का जो पहला लाइन लिखा है सर, वो समझ में नहीं आ रहा सर। एन स्टार सर्च, मतलब सर सर्च मेरा पॉइंटर है सर। हाँ, पॉइंटर टू फंक्शन बताया गया होगा ना सी में। इसका अभी चूंकि हम लोग इसका यूज अभी आगे भी करेंगे सॉर्टिंग में, इसलिए पॉइंटर टू फंक्शन यूज कर रहे हैं। सर्च इज यूज एज ए पॉइंटर टू फंक्शन, सर्च इज ए फंक्शन बट इज पॉइंटर टू फंक्शन नहीं बताया गया। पॉइंटर टू एरे, पॉइंटर टू फंक्शन, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, पॉइंटर टू पॉइंटर। Sir, actually, sir, there was certain confusion when pointer was going on, because there was examination of AKU going on, and fads are used to take our classes, sir. So No issue, there are no certain. issue. But wait. Let me complete first. Then there's no any doubt occur. Asterisk search. Here we are using search as a pointer to function. ठीक है ना? Earlier we are using pointer to pointer. Asterisk head ले रहे थे. तो why we are using pointer to pointer? Because pointer to pointer is always used whenever we are going to assign the address of any pointer variable to another pointer variable. Here we are using pointer to function, because this search function is used as a pointer to function for sort out the particular various operation whenever we are going to perform insertion, deletion, anything. तो इंसर्शन डिलीशन कुछ भी करेंगे तो जहां पर सर्च करने का जरूरत होगा तो हम इस सर्च फंक्शन को एज ए पॉइंटर टू फंक्शन कॉल करेंगे। तो इसलिए वहां पर एस्ट्रिक सर्च लिखने का मतलब है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है केवल वेरिएबल ही आपका पॉइंटर होता है, फंक्शन भी पॉइंटर होता है। ठीक है ना? तो फंक्शन को भी हम पॉइंटर बना सकते हैं, पॉइंटर टू फंक्शन है। दैट्स वाई पैरामीटर यहाँ पर एन एस्ट्रिक्स हेड आपको समझ में आ रहा होगा। आइटम आपको जो सर्च करना वो है। व्हाइल जो कंडीशन लिखा गया है इसमें भी कोई डाउट नहीं है। व्हाइल जो कंडीशन लिखा गया है इसमें क्या है, दो कंडीशन चेक किया जा रहा है लॉजिकल एंड से। पहला कंडीशन क्या है कि हेड नॉट इक्वल टू नल। हेड नॉट इक्वल टू नल कब होगा, हेड नॉट इक्वल टू नल कब होगा, जब हेड में एटलीस्ट एक भी नोड का एड्रेस होगा। ठीक है ना? एक मिनट,
एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो हेड वाइल हेड नॉट इक्वल टू नल, ये हो गया कि आपका हेड कोई ना कोई नोड का एड्रेस को रखा है। दूसरा, हेड का इन्फो नॉट इक्वल टू आइटम, बिकॉज वी आर गोइंग टू सर्च द आइटम इन द लिस्ट। तो हेड का इन्फो नॉट इक्वल टू आइटम, अब इस दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी डिस्क्वालीफाई करेगा तो आपका ये हेड का एड्रेस चेंज नहीं होगा। तो हो सकता है कि आप पूरे लिस्ट को कंपेयर करते गए, पूरे लिस्ट के आइटम को कंपेयर करते हुए लास्ट नोड पर पहुंच गए, और लास्ट नोड को पर जब पहुंचे तो उसके नेक्स्ट को हेड में असाइन किया। हेड में जैसे ही असाइन किया तो नेक्स्ट टाइम जब आपका ये लूप चलेगा तो हेड नॉट इक्वल टू नल डिससेटिस्फाई करेगा, तो ये लूप से बाहर। इसका मतलब क्या है, एंड ऑफ द लिस्ट, पूरे लिस्ट को स्कैन करने के बाद भी आपको वो एड्रेस नहीं मिला जिस एड्रेस पर आइटम अवेलेबल है। इसका मतलब है आइटम अवेलेबल ही नहीं है लिस्ट में, जिस आइटम वैल्यू को आप कंपेयर करने जा रहे हैं। तो फाइनली आपको क्या करना है, इस लूप से बाहर आपको केवल रिटर्न कर देना है। रिटर्न क्या करना है, हेड। तो यहां से लूप से बाहर रिटर्न हेड नल कब होगा गौरव? सर लिस्ट में हेड में नल असाइन हुआ और डिसक्वालीफाई कर गया, ये कंडीशन वाइल लूप से बाहर निकले, फाइनली आप हेड में नल आपका असाइन हो गया, क्योंकि लास्ट नोड के नेक्स्ट को आप हेड में असाइन किए हैं। तो जैसे ही हेड में नल असाइन हुआ तो रिटर्न क्या होगा, नल रिटर्न होगा, क्योंकि हेड का वैल्यू नल है। तो जैसे ही नल होगा इसका मतलब है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्च ऑपरेशन नो आइटम एग्जिस्ट इनसाइड द लिस्ट। बट दूसरा केस ये हो सकता है कि हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट करते हुए आपको हेड इन्फो नॉट इक्वल टू आइटम डिसक्वालीफाई किया, यानी कि किसी पर्टिकुलर, सपोज करिए कि ये आपका लिस्ट है, इस लिस्ट में आप 10 को सर्च कर रहे हैं, 10 को सर्च कर रहे हैं, 10 इज योर सर्च आइटम। तो पहली बार 2 को कंपेयर किया, 2 को कंपेयर किया तो हेड इन्फो, हेड का जो नेक्स्ट है वो हेड में आपका क्या, यहाँ कंडीशन जो ले रहे हैं हेड नॉट इक्वल टू नल, इसका मतलब है कि आपका जो है हेड में नल नहीं है, फर्स्ट नोड का एड्रेस है तो हेड में नल नहीं है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई किया। दूसरा कंडीशन क्या है, हेड का इन्फो नॉट इक्वल टू आइटम, यस आपको 10 सर्च कर रहे हैं, ये 2 है तो नहीं है, इसका मतलब हेड को आप क्या चेंज किए, हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट। तो नया एड्रेस हेड का क्या आ गया, ये सेकंड नोड का एड्रेस। सेकंड नोड का जब एड्रेस आया तो यहाँ भी हेड नॉट इक्वल टू नल सही है, क्योंकि हेड इसमें एड्रेस है किसी नोड का। हेड का इन्फो नॉट इक्वल टू आइटम, ये भी सही है, क्योंकि हेड का इन्फो आपका 5 है और आइटम आपका 10 है, तो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू है। तो इसके बाद भी हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट हुआ, अब हेड क्या आ गया, थर्ड नोड का एड्रेस आ गया। थर्ड नोड का एड्रेस आया तो यहाँ पर पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, हेड नॉट इक्वल टू नल, यस हेड नॉट इक्वल टू नल है बिकॉज हेड कंटेन्स द एड्रेस ऑफ थर्ड नोड, बट द सेकंड कंडीशन इज डिससेटिस्फाइड। तो सेकंड कंडीशन में क्या है, हेड नॉट इक्वल टू आइटम, बट हियर द 10 इज देयर एंड यू आर सर्चिंग द 10। तो जैसे ही आपका ये दूसरा कंडीशन डिसक्वालीफाई किया, डिससेटिस्फाई किया, तो अब यहाँ पर हेड रुक गया, यानी कि अब हेड का नेक्स्ट आप नहीं कर पाए। जैसे ही आप यहाँ पर जो है हेड नॉट इक्वल टू आइटम कंपेयर किया तो हेड यहाँ तो तक तो हेड पहुंचा है, यहाँ पर आपका हेड का इन्फो जो है आइटम से मैच कर गया, यानी एक दूसरा जो कंडीशन था वो डिससेटिस्फाई किया, तो आपका लूप वहां से टर्मिनेट हो गया। लूप टर्मिनेट हुआ तो हेड में किसका एड्रेस है, थर्ड नोड का। थर्ड नोड का है। तो थर्ड नोड का है, इसका मतलब है कि हाँ एक मिनट, तो ये हेड में आपका जो है यहाँ रिटर्न हेड आपका एड्रेस करेगा उस नोड का, थर्ड नोड का एड्रेस। लेकिन अगर आप पूरे लिस्ट को सर्च कर दिए और उस जो आइटम सर्च करना वो नहीं मिला, तो आपका टर्मिनेशन होगा हेड नॉट इक्वल टू नल के बेसिस पर, क्योंकि जैसे ही आप लास्ट नोड पर जाएंगे तो आपका हेड में नल असाइन होगा और रिटर्न भी नल ही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, रीज्वाइन करिए।